Hello and welcome to your Standard 7th History class. Children, we will continue our Chapter 9, the Maratha War of Independence, Part 3. In the previous two classes, we learnt about Part 1 and Part 2. I hope you have understood those two parts. Now we will continue the story and the lesson, and this is the final part of the lesson, so pay attention. Lot of interesting things are there in this lesson. What will we learn in Part 3? Now these are the explanation points. In Part 3, the points are the movements of the Marathas, siege of Jinji Fort, Maharani Tarabai, and lastly we will learn and see about the family tree of the Bhosles, which are the Marathas. Alright. Now in Part 3 we will see and listen attentively to the explanation, as it is a very important part, students. Very interesting, very important part. And after this video you will see and learn about the family tree. This is the family tree of the Bhosles. This is the structure of the entire Maharashtra family. Bhosles, why do you say Bhosles? Bhosles is the surname of the Maratha dynasty people. We will learn about them. War of Independence. Now, in the textbook, you can see it is just one lesson, but here we have divided this lesson into 3 parts because this lesson was lengthy. Therefore, this lesson has been divided into 3 parts. This is the last part, children. So, this is the last part, and we will be doing the finishing of this lesson, and we will do a little bit of question answers, and we will also do a brief revision of the lesson in this lecture. Yes. So, first of all, so now we will do the revision, students. So what is the revision points? Let us see on the screen. Okay, so what is the revision points? We will see the Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So what we saw after this lesson deals with the history of Swaraj after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कौन बन गए छत्रपति? हम सबको पता है, उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज became the Chhatrapati. And then we saw his administration was to the point. How he used to take care of the riot. He maintained the same Ashtapradhan Mandal. He also took care of the riot. He gave them justice. He punished the landlords. Okay, so all this we saw in this lesson. And Chhatrapati Sambhaji Maharaj was dealing with many enemies on the forefront as well as taking care of the riot. Chhatrapati Sambhaji Maharaj was dealing with Portuguese, with the Siddhis, with the Adil Shahi, the Nizam Shahi, as well as the Mughals. Okay, so ये हमने हमारे last lecture में देखा. Next we will see the revision. Administration of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. He was so good in military and civil administration. He was influenced by his father Chhatrapati Shivaji Maharaj. जो उन्होंने सिखाया था उससे deeply influenced थे. हमारे जो संभाजी महाराज थे वो deeply influenced थे अपने father से. अपने father के बताए हुए नक्शे कदम पर ही चल रहे थे. ओके, उसके बाद हमने देखा कैप्चर्ड एट संगमेश्वर. किसने उनको पकड़ लिया था? मुकर्रब खान ने. ओके, तो मुकर्रब खान वाज एट कोल्हापुर. औरंगजेब ने ड्यूटी दिया था मुकर्रब खान को टू बी एट कोल्हापुर. एंड संगमेश्वर में व्हाट वाज हैपनिंग एट संगमेश्वर? दैट संभाजी महाराज हैड अ मीटिंग ऑफ हिज एसोसिएट्स एट संगमेश्वर. सो व्हाट डिड मुकर्रब खान डू? मुकर्रब खान laid a siege at Sangameshwar, and the Chhatrapati Sambhaji Maharaj was captured. Now what we saw that he faced his death nobly and bravely. उन्हें बहुत साहस के साथ अपने जो मौत का सामना किया. उसके बाद हमने देखा छत्रपति राजाराम महाराज. He was the second son of छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब संभाजी महाराज के भाई थे वो. तो वो क्या बन गए? आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज कौन बन गया छत्रपति? राजाराम महाराज जो थे ये छत्रपति बन गए. और इनका भी हमने देखा, हमने बहुत अच्छी इनकी भी ये देखी है हिस्ट्री देखी. व्हाट वी सॉ के वो जो थे छत्रपति राजाराम महाराज जो थे वो जुल्फिकार खान ने उनको औरंगजेब ने भेजा था जुल्फिकार खान को, ताकि वो छत्रपति राजाराम महाराज को भी कैप्चर कर सके. उसके बाद हमने देखा सीज ऑफ रायगढ़. सीज मतलब हमला या कैप्चर करना रायगढ़ के फोर्ट को. एवरीवन नोज दैट रायगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ स्वराज. तो रायगढ़ जो किला था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
Maratha Sardars and from point of view of Swaraj. So Aurangzeb sent Zulfikar Khan, his loyal Mughal Sardar, to कैप्चर रायगढ़. अभी देखेंगे हम लोग ये लेसन में कि क्या होता है, रायगढ़ को पे कैप्चर हो पाते हैं. और रायगढ़ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, देयर वर 4 पीपल, 4 family members on the fort of Raigad. So let's see in this lesson what happens next. Okay, let's see. Yes, महारानी येसुबाई का डिसीजन था कि जो रॉयल फैमिली मेंबर्स है, ओके, सो जो 4 रॉयल फैमिली मेंबर्स कौन कौन थे. सबसे पहले हु वाज देयर, राजा राम महाराज एंड हिज वाइफ वाज देयर, संभाजी महाराज वाइफ महारानी येसुबाई वाज देयर एंड हिज सन शाहू वाज देयर. कौन 4 लोग थे रायगढ़ किले पे जब उनके ऊपर हमला हुआ? देयर वर 4 पीपल्स. फर्स्ट वाज छत्रपति राजा राम महाराज, देन संभाजी महाराज की जो पत्नी थी महारानी येसुबाई, उसके बाद महारानी ताराबाई थी, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के जो सन शाहू, सॉरी yes, Shahu was son Shahu was also on the fort. So they were 4 of them, or 4 royal family members were on the fort of Raigad. So what Yesubai took decision, us time pe Yesubai tackled this calamity, this situation very bravely. What did he say? What did she said? Resolving the situation, she said that she would not surrender to the Mughals under any conditions, and she took the important decisions of sending छत्रपति राजा राम महाराज टू फार फोर्ट. उन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, दूर के कोई फोर्ट पे चले जाइए, इवन टू जिंजी, जिंजी पे भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन राजा राम महाराज का यहाँ रुकना सही नहीं है. इट इज नॉट राइट दैट ऑल 4 फैमिली मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली स्टे हियर एट द फोर्ट ऑफ रायगढ़. तो महारानी येसुबाई का ये डिसीजन था. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. यस, नाउ राजा राम महाराज leaves for Jinji with his associates on 5th of April 1689 को. 1689 में क्या हुआ, जो राजा राम महाराज थे फ्रॉम रायगढ़ से he left for Jinji. जिंजी भी एक फोर्ट का नाम है. जिंजी is also a name of fort. Now who with छत्रपति राजा राम महाराज? We can see on the slide प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल और रूपाजी भोसले. ये जो थे 3 मराठा सरदार, उनके एसोसिएट्स थे. किसके लॉयल एसोसिएट्स थे? हमारे छत्रपति राजा राम महाराज के लॉयल एसोसिएट्स थे, लॉयल मराठा एसोसिएट्स थे. सो दे वर अकम्पनिंग हु छत्रपति राजा राम महाराज के साथ थे. एंड इट वाज नॉट इजी टास्क फॉर द मुगल्स टू कैप्चर दिस फोर्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि जिंजी का फोर्ट कैसा था. यस, अब ये जो फोर्ट ऑफ जिंजी थे ये इनविंसिबल. व्हाट डू यू मीन बाय इनविंसिबल? लाइक इट वाज नॉट इजी टू कैप्चर एंड नॉट इजी टू lay a raid on the fort of Jinji. So it was not easy for Mughals to attack and capture Jinji. Then राजा राम महाराज के लिए सबसे सेफेस्ट जगह थी ये फोर्ट ऑफ जिंजी. was the safest place for छत्रपति राजा राम महाराज. ओके, और फेथफुल सरदार कौन थे उनके साथ में? प्रहलाद निराजी थे, खंडो बल्लाल थे and Rupaji Bhosle. They were the loyal associates of राजा राम महाराज. और उन लोग सब मिलके कहाँ पहुंच गए? रायगढ़ से जिंजी. एंड जिंजी वाज द सेफेस्ट. ओके, सेफेस्ट जगह थी. देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, इट वाज इनविंसिबल. वहां तक पहुंचना मुगल आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. यस, अभी हम लोग देखेंगे कि जब वहां से छत्रपति राजा राम महाराज व्हेन ही वेंट फ्रॉम रायगढ़ टू जिंजी, व्हाट हैपेंड इन रायगढ़. क्योंकि मुकर्रब खान तो पूरा प्लान बना के आए थे, उनके पास बहुत सारी, एज यू नो, मुगल्स हैड अ लॉट ऑफ आर्मी, आर्टिलरी, हॉर्सेस, एलिफेंट, सोल्जर्स, सब उनके पास बहुत सारे थे. तो व्हाट हैपेंड, दे कैप्चर्ड येसुबाई एंड शाहू महाराज. ये दोनों जो थे वो पकड़े गए while going to जिंजी. लेकिन जिंजी जाने से पहले राजा राम महाराज had assigned the duty to fight against मुगल्स. किसको किसको दिए थे ड्यूटी? रामचंद्र पंत अमत्या, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े एंड धानाजी जाधव. अब ये जो संताजी घोरपड़े है और धानाजी जाधव है, इनके जो स्टोरीज है, वी विल स्टडी मोर अबाउट देयर स्टोरीज इन द फर्दर स्लाइड. तो कौन कैप्चर हो गए, कौन मुगल्स के कैप्चर में आ गए? येसुबाई और सन शाहू. Yes, in जो 4 you can see on the slide, these 4 people
So Chhatrapati Raja Ram Maharaj gave the instruction to all these 4 people to fight for Swaraj. Okay, तो वहां पर के उनकी फाइट, स्वराज के लिए फाइट करना था उनको रायगढ़ के किले पे, एज वेल एज दे हैव टू प्रोटेक्ट येसुबाई एंड शाहू. तो कौन कौन थे ये सब? रामचंद्र पंत अमत्या, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये नाम याद होना चाहिए. रामचंद्र पंत अमत्या, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और दानाजी जादव. इनको काम दिया गया था, क्या काम असाइन थी ड्यूटी? टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, ओके, एट द फोर्ट ऑफ रायगढ़. नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. Yes, now this is the very important part of the lesson. What happened to the Maratha Sardars and why were they joining hands with the Mughals? Why were the Maratha Sardars, थोड़े करके, why were these Maratha Sardars were joining hands with the Mughals? Little by little, Maratha Sardars were joining hands with Aurangzeb. Why? Because Aurangzeb used to bribe them with watans and jagirs. Aurangzeb had enticed many Maratha Sardars to his side by giving them watans and jagirs. सब सपोर्ट में आ गए. जो कुछ हैंडफुल मराठा सरदार थे वो क्या करने लगे? औरंगजेब को सपोर्ट करने लगे. Why? Because Aurangzeb used to give them watans and jagirs. Next slide we will see. Yes, तो क्या हुआ? Next, Raja Ram Maharaj also used this same tactics. उन्होंने उनका प्लान वैसे ही यूज करा. What did Raja Ram Maharaj do? It was promised किया राजा राम महाराज ने that if a Maratha Sardar captured Mughal territory, it would be given to him as a jagir. राजा राम महाराज ने भी वही जो आइडिया था, जो औरंगजेब ने यूज किया था आइडिया, वही आइडिया, सेम आइडिया हु यूज राजा राम महाराज, दैट इफ अ मराठा सरदार ने कोई मुगल टेरिटरी पे इन्वेड किया, मुगल टेरिटरी को लूटने का ये सीज किया, तो व्हाट विल राजा राम महाराज डू? Raja Ram Maharaj will also gift that territory as a jagir, as a gift to the brave Maratha Sardar. So due to this, many capable Maratha Sardars came forward. Yes, ये जब पता चला कि अब हमको ये जागीर मिल जाएगी, तो many capable Maratha Sardars came forward. They started invading the Mughal territory with vigor and defeated the Mughal generals. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो थे, व्हाट वर द 2 इंपॉर्टेंट नेम? संताजी घोरपड़े, विट्ठोजी चौहान और उसके साथ थानाजी. ये जो तीनों जन थे, दे वर वेरी फियर्स इन बैटलिंग अगेंस्ट द मुगल्स. दे हैड लॉट ऑफ ब्रेवरी, valor, as well as they used to use their mind, guerrilla warfare tactics, आपको सबका पता है. तो ये सब यूज करके what they did do? They captured many Mughal territories and they invaded many Mughal territories. Okay, next हम लोग देखेंगे. तो यस, तो इससे क्या हुआ? हमारे राजा महाराज को क्या मिला? सपोर्ट ऑफ मैनी सरदार, सपोर्ट ऑफ मैनी मराठा सरदार, जो उस तरफ चले गए थे औरंगजेब के साइड. अगेन दे केम टू सपोर्ट देयर किंग राजा राम महाराज. वो उनके सपोर्ट में फिर से आ गए. ओके, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखेंगे. यस, अभी जो मैंने आपको 3 नाम बताई, संताजी, धानाजी और विट्ठोजी. Okay, you have to remember these 3 names are very important from the point of view of history. Now these 3 Maratha Sardars came forward and started fighting against the Mughals, and they started looting the Mughal territory. They started invading. But how? Surprise attacks. रात के अंधेरे में they used to attack the मुगल फोर्ट्स एंड गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक. आपको सबको पता है गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक, जो हमारे शिवाजी ने, जो मावलेस जो थे, उनकी जो फेवरेट टेक्निक थी गुरिल्ला वारफेयर, मतलब पीछे से अटैक करने का. 2 जन ऊपर रहेंगे, 2 जन नीचे रहेंगे, तो वो होता है गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक. So they used this and they were very knowledgeable in using these techniques and using the surprise attacks. The Mughal forces were at their wits and they don't know what to do, क्योंकि उनको ये tactics आती नहीं थी. ओके, संताजी घोरपड़े, धानाजी और विट्ठोजी चौहान, इनका नाम जो है हिस्ट्री में इसलिए फेमस है बिकॉज दे वर द ब्रेव मराठा सरदार्स. नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे. यस, और एक दिन तो उन्होंने क्या किया, हमारे संताजी घोरपड़े और विट्ठोजी ने क्या किया? देखो, what they did, you know, they were so brave and they used to fight so fiercely that one day, you know what they did? They brought the pinnacle of emperor's tent.
जो एम्परर का टेंट होता है, देखो उनके हाथ में गोल्डन, तो वो कट करके उन लोग लेकर आए। तो दे वर सो फाइटिंग सो ब्रेवली एंड सो फियर्सली अगेंस्ट द Mughals. Okay, so what they did, one thing, one day they cut and carried away the golden pinnacle of the emperor's own tent in a surprise attack. तो इनकी जो स्ट्रेटेजी क्या थी, हमारे संताजी घोरपड़े, विट्ठोजी चौहान और धानाजी, व्हाट वर देयर स्ट्रेटेजी? सरप्राइज अटैक्स। ओके, उसके साथ में सरप्राइज अटैक्स के साथ उनको गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स भी आती थी। ओके, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, जो एम्परर के टेंट पे देखो जो लगा रहता गुम्बज जिसे कहते हैं, वही कोई कट करके लेकर आ गए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। नाउ हम लोग जिंजी के बारे में देखेंगे। औरंगजेब डिप्लॉयड जुल्फिकार खान टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ जिंजी विद सपोर्ट ऑफ पोर्चुगीज। तो हु सपोर्ट डिड औरंगजेब गेट? पोर्चुगीज। ये भी आपको पता है फॉरेन पावर थी, ये भी एनिमीज थी स्वराज की, पोर्चुगीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द पोर्चुगीज वर आल्सो द एनिमीज ऑफ मराठा आर्मी एंड दे वर एनिमीज ऑफ स्वराज। So Aurangzeb deployed Zulfikar Khan to capture the fort of Jinji with the support of Portuguese. Next हम लोग slide देखेंगे। Yes, the siege of Jinji. So the Marathas defended very bravely for Jinji for 8 years. Okay, तो हमारे जो जुल्फिकार खान थे जिनको औरंगजेब ने डिप्लॉय किया था, ये जिंजी का फोर्ट आपको सबको पता है। I told you earlier that this fort was invincible. बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और वेरी डिफिकल्ट था फॉर मुगल आर्मी टू कैप्चर दिस फोर्ट, बट स्टिल जुल्फिकार खान विथ ऑल हिज माइट, विथ ऑल हिज आर्मी कैप्चर्ड दिस फोर्ट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मराठा सरदार। बट हमारे मराठा सरदार ने भी बहुत ज्यादा डिफेंड किया। देखते हैं हम लोग आगे। Yes, 8 years of defense by Maratha Sardars. Can you imagine? Can you imagine, students? 8 years हमारे मराठा सरदार ने उनको डिफेंस दिया। डिफेंस मतलब उनके अटैक के आगे हमारे मराठा सरदार कितने साल तक खड़े थे? 8 इयर्स तक हमारे मराठा सरदार जो थे वो उन्होंने डिफेंड किया जुल्फिकार खान को एंड हिज ह्यूज आर्मी। यू नो, जुल्फिकार खान डिड नॉट हैव 5 पीपल अलोंग विथ हिम। जुल्फिकार खान हैड ह्यूज आर्मी, आर्टिलरी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस अलोंग विथ हिम टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ जिंजी। तो कितने साल तक हमारे मराठा सरदार लड़े उनसे? 8 इयर्स। यू कैन इमेजिन, 8 साल उन्होंने लड़ा किसके साथ? मुगल आर्मी के साथ हमारे मराठा सरदार। और इस फाइट में कौन आगे आया? संताजी एंड धानाजी। दे वर वेरी ब्रेव एंड दे अटैक फ्रॉम आउटसाइड। हु? संताजी एंड धानाजी। बट राजा राम महाराज यहाँ से एक्सकेप होके फिर से कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में। जिंजी से escape होके राजा राम महाराज reached Maharashtra. Next slide we will see. Yes. After the siege of Jinji, the Jinji fort was captured by Zulfikar Khan because as we know, Zulfikar Khan had huge army. तो इतने सारे आर्मी के आगे हमारे मराठा सरदार ने फिर भी उनको एक टफ कंपटीशन दिया to fight for 8 years, defended the fort for 8 years, but after 8 years, it was not possible. And the fort of Jinji laid in the hands of Mughals. So, what did Rajaram Maharaj do? Rajaram Maharaj escaped from the fort of Jinji and reached Maharashtra. Let's see next. Yes. Now, after Rajaram Maharaj returned to Maharashtra, what happened? This gave a lot of confidence to Maratha Sardars. Yes, जब हमारा लीडर आ जाता है हमारे पास तो हमको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सिमिलरली राजाराम महाराज के लौटने के बाद मराठा सरदार के कॉन्फिडेंस में एकदम हाई हो गए उन लोग, लेवल हाई हो गया उनका कॉन्फिडेंस का। एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग वेयर खानदेश, बागलान और वरहाड़। नाउ दिस territories they started attacking from the Mughals. Okay, so the Maratha attacks Mughal territories of Khandesh, Varha and Baglan. Raja Maharaj inspired hundreds of brave Maratha like Santaji and Dhanaji with his understanding nature and statesmanship. Okay, next slide we will see. संताजी, धानाजी, विट्ठोजी, ये सब कैसे हमको पता चला? इनकी ब्रेवरी कैसे पता चली? बाय द अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ
राजा राम महाराज, इनके अंडरस्टैंडिंग नेचर की वजह से और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमको क्या पता चलता है कि ये संताजी और धानाजी और विठोजी, these three people came out to be and recognized to be the brave warriors in the Maratha army. Okay, so he motivated them to protect the Swaraj and he performed a very valuable task. And even all this way taking place, okay, so उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान दिया, प्लस मराठा सरदार लाइक ब्रेव वॉरियर्स लाइक संताजी, धानाजी और विठोजी, ये हमको पता चलते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि ये जो तीनों थे ये कितने ब्रेव वॉरियर थे. क्योंकि किसने इनको मोटिवेट किया था? हु मोटिवेटेड देम? राजा राम महाराज मोटिवेटेड देम. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारी स्लाइड. यस, इवन दो दिस वाज हैपनिंग, सब चीज हमारे फेवर में थी, तो क्या हुआ, हमारे लीडर जो थे छत्रपति राजा राम महाराज डाइड ऑन 2 मार्च 1700 ड्यू टू स्मॉल इलनेस की वजह से, शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस की वजह से हमारे जो छत्रपति राजा राम महाराज थे उनकी जो क्या हो गई, डेथ हो गई. ठीक है, ऑन 2 मार्च 1700. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्लाइड हमारी. यस, अभी हम लोग वी विल फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज. आपको सबको पता है जब हमारे जो लीडर होता है वो लीडर हमारे साथ नहीं होता है तो जो एक आ जाता है. ओके, तो जो आर्मी होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, पीपल उस तरह मोटिवेटेड नहीं रहते. बट छत्रपति राजा राम महाराज एक मोटिवेशनल एक पर्सनालिटी थे. ओके, सो वो छत्रपति राजा राम महाराज वाज वेरी थॉटफुल. ओके, हर चीज का डिसीजन ही यूज्ड टू think twice before giving any decision. He was very kind-hearted person. He united the Maratha Sardars. He made them realize that how brave and valor they have, how fearful they are. He made them realize. He brought them together and made them realize how capable Maratha Sardars they are. Okay, in the Maratha Empire, he united them, created a new enthusiasm amongst them. उनके अंदर एक उत्साह उन्होंने जगाया मराठा सरदार के अंदर. जो छत्रपति राजा राम महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, हमको पता चला है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लोग उत्साहित हो गए, मराठा सरदार ब्रेव हो गए और वो मुगल टेरिटरी को अटैक करने लगे. फर्स्ट अर्लियर व्हाट वाज देयर स्ट्रेटेजी, दे यूज्ड टू डिफेंड, मराठा सरदार यूज्ड टू डिफेंड. बट अंडर द लीडरशिप, अंडर द गाइडेंस ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, व्हाट हैपेंड, द मराठा सरदार स्टार्टेड the attacking technique. They changed their war technique and they started attacking. Okay, he fought against Aurangzeb for 11 years. Okay, with great courage and tenacity के साथ, पूरे courage के साथ, पूरे tenacity के साथ. Raja Ram Maharaj's greatest achievement is that he protected Swaraj when in those times, in very difficult times when there was no Sambhaji and when there was no Shivaji. At that time, Raja Ram Maharaj protected the Swaraj. While describing now राजा राम महाराज को जो हिस्टोरियन है GS सरदेसाई, वो क्या कहते हैं, स्थिर बुद्धि. व्हाट डू यू मीन बाय स्थिर बुद्धि? स्थिर बुद्धि का मतलब होता है लेवल हेडेड. तो इससे हमको पता चलता है राजा राम महाराज वाज लेवल हेडेड. ही यूज्ड टू टेक डिसीजंस विथ वेरी थॉटफुली and giving a lot of thought in it, thinking about it, and he united the Maratha Sardars, which was the very important characteristics of Chhatrapati Raja Ram Maharaj. Okay, so next हम लोग देखेंगे अभी slide. Yes, 11 years of struggle against the Mughals. उन्होंने मुगल के अगेंस्ट 11 साल लड़े हैं वो मुगल से, औरंगजेब से, और अपने स्वराज को फिर भी उन्होंने बचा के रखा. स्वराज को उनके हाथ में जाने नहीं दिया. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. हर नेम इज महारानी ताराबाई. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, औरंगजेब ने क्या सोचा? औरंगजेब थॉट दैट ही हैड वॉन द बैटल अगेंस्ट द मराठास, बट इट वाज नॉट सो. ऐसा नहीं था. औरंगजेब was winning battle after battle, but he could not win the war. जो मेन जो वॉर चल रही थी वो जीत ही नहीं पा रहे थे. Who sat on the गद्दी after छत्रपति राजा राम महाराज? उनकी जो पत्नी थी महारानी ताराबाई, she became the leader of Swaraj.
नाउ ये किसकी पत्नी थी, वाइफ थी राजा राम महाराज की, और बेटी पता है किसकी थी ये, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, हम्बीराव मोहिते. दिस नेम आई हैव टेकन इन द लास्ट लेक्चर. he sacrificed his life for the betterment of स्वराज, for attaining स्वराज. जब मुगल्स ने अटैक किया था तभी उनकी जो जान थी वो उन्होंने सेक्रीफाइस करी थी, शहीद हुए थे वो. तो ये जो मराठा, ग्रेट मराठा लीडर की ये बेटी थी, हम्बीराव मोहिते की बेटी थी महारानी ताराबाई. एंड शी वाज वेरी कैपेबल आल्सो. नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. यस, तो खफी खान का क्या कहना है, इससे पहले भी हमने खफी खान का नाम लिए थे. हु इज खफी खान? खफी खान वाज द मुगल historian, okay, contemporary Mughal historian describes महारानी ताराबाई as intelligent and knowledgeable woman. बहुत ही दिमाग वाली और बहुत ही knowledgeable, full of knowledgeable woman. What does he say? That her administration and her management of the army had won renown even during the rule of her husband. Even though उनके husband जब थे, राजा राम महाराज जब लीडर थे स्वराज के, at that time also people used to say that जो महारानी ताराबाई है, she is very intelligent, she is a knowledgeable woman, as well as उनकी administration और आर्मी की जो knowledge है वो बहुत ही अच्छी है, सेम उनके हस्बैंड के जैसी है, राजा राम महाराज की जैसी है. Okay, so next we will see. So after the death of Chhatrapati Rajaram Maharaj, Maharani Tarabai continued the struggle for Swaraj very bravely with the help of Maratha Sardars. Maratha Sardars के help के साथ उन्होंने ये continue किया अपना स्वराज का struggle. So औरंगजेब captured which place? सतारा and पन्हाला. उसके बाद जब छत्रपति राजाराम महाराज की डेथ के बाद औरंगजेब अटैक्ट सतारा, पन्हाला एंड कैप्चर्ड. तो उसके अगेंस्ट, उसके जवाब में, इन आंसरिंग दैट व्हाट डिड मराठास डू? मराठास ने भी करा कुछ. मराठास डैश्ड अप द मुगल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. यस, ताराबाई एक्सपांडेड द वार एरियाज फर्दर. अर्लियर हम लोग ने लेसन में आपने पढ़ा होगा कि जो मराठा सरदार थे, दे जस्ट यूज्ड टू डिफेंड इट बिकॉज दे वर वेरी हैंडफुल. तो वो लोग जो मुगल आर्मी के आगे बहुत कम थे, उनके जो total number of Maratha Sardars come थे, so they used to defend. But now what happened? The game plan changed. They started attacking. Maratha Sardars started attacking the Mughal territories. Okay, तो आपने देखा यहाँ पर जैसे ही औरंगजेब ने सतारा और पन्हाला पे अटैक किया, so even then Maratha Sardar also attacked which territories? Areas of Madhya Pradesh and Gujarat. और सरदार्स लाइक नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कौन से सरदार्स आ गया है. ओके, तो सरदार्स लाइक कृष्णाजी सावंत, खांडेराव धाबाड़े, धानाजी जाधव एंड नेमाजी शिंदे ओपन बैटल्स अगेंस्ट मुगल्स. ये जो सरदार थे, दे स्टार्टेड बैटलिंग अगेंस्ट मुगल्स, ओके, ऑन वेरियस फ्रंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र. तो दिस वाज अ साइन ऑफ चेंज इन द वॉर टेक्निक. पहले सिर्फ क्या थी, हमारी डिफेंस वाली टेक्निक थी, बट आफ्टर छत्रपति राजाराम महाराज के मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस से और इंस्पायर होके, एंड आफ्टर ताराबाई केम इनटू द पिक्चर, ताराबाई ने जो लीडरशिप संभाली, उससे हमको क्या पता चलता है कि द मराठा सरदार्स आल्सो स्टार्टेड अटैकिंग एंड स्टार्टेड ओपनिंग बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स लीडर्स. ओके, नाउ जो ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी ताराबाई जो थे, ये दोनों जो थे, ये इनकी बहू है और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ससुर है. तो ये जो लीगेसी मतलब जो होता है प्रथा, ओके, जो इनके घराने की प्रथा थी, क्या प्रथा थी इनके घराने की? वेलर, ब्रेवरी. तो ये जो है वो कैरी करी थी किसने? हमारी महारानी ताराबाई के अंदर उसी तरह की जो ब्रेवरी वो दिखाई देती थी. ओके, तो महारानी ताराबाई fought with great valor single handedly against the Mughals. Okay, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे. यस, महारानी ताराबाई fought for 7 years. ओके, कितने साल उन्हें लड़े औरंगजेब से? 7 years. She kept the Maratha kingdom strong. She took charge of the administration single-handedly. अकेले उन्होंने सब करा, and encouraged the Sardars to participate in mission of Swaraj. ताराबाई ने क्या किया? शी इंकरेज सरदार, जो मराठा सरदार थे उनको एंकरेज किया, उनको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया टू पार्टिसिपेट इन द मिशन फॉर स्वराज.
एंड मराठा सरदार्स आल्सो फॉट अगेंस्ट द मुगल्स अप टू सिरोंज, मंदसौर, ये सब जो दूर दूर जगह थी, जो मराठा सरदार्स ने पहले कभी उस जगह पे कभी हमला नहीं किया था, तो वहां तक के मराठा सरदार्स इन्वेड करने लगे और हमला करने लगे. ओके, so they started participating in the mission for Swaraj by the motivation of महारानी ताराबाई. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. और ताराबाई के बारे में जो ये हमारे पोएट देव दत्ता है, उन्होंने कुछ 4 लाइनें लिखी है फॉर महारानी ताराबाई. ओके, तो देव दत्ता कौन थे? सन ऑफ परमानंद, ऑथर ऑफ शिव भारत. उन्होंने महारानी ताराबाई के लिए while डिस्क्राइबिंग ताराबाई ग्रेट अचीवमेंट, पोएट देव दत्ता ने कुछ लिखा है. मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो आपके मन में. ताराबाई राम राणी, भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्लीशाचे गेले पाणी. राम राणी भद्रकाली, रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नाची वेळ आली, मुगल हो संभाळा. ओके, फिर से मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए. ये किसने लिखा है? महारानी ताराबाई के लिए लिखा गया है, लेकिन किसने लिखा है? पोएट देवदत्ता ने 4 लाइनें लिखी है, 4 लाइन्स टू अवर लीडर महारानी ताराबाई. ताराबाई राम राणी, भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्लीशाचे गेले पाणी. राम राणी भद्रकाली, रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नाची वेळ आली, मुगल हो संभाळा. यस, तो वो पोएट क्या बोलता है? जो हमारी ताराबाई, जो हमारी रानी है, जो किंग है, वो भद्रकाली कोपली, मतलब वो जो देवी होती है भद्रकाली के जैसी हो गई है. दिल्लीशाचे गेले पानी, उनका इतना हाल हो गया कि उनके पानी, उनका वो डर गए. दे आर फियरफुल ऑफ अस, मुगल्स आर फियरिंग ऑफ महारानी ताराबाई. और वो उनको अगर गुस्सा आ गया हमारे महारानी ताराबाई को, तो आप लोगों की शामत आ गई है, आप लोग भागो यहाँ से, मुगल हो संभाड़ा. मुगल्स जो है सब लोग संभल के रहो. हमारी कौन आ रहा है? हु इज इन द बैटल अगेंस्ट मुगल्स? महारानी ताराबाई. नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं. यस, अभी ये जो फाइट थी, ये फाइट चली कुछ टोटल 25 years के लिए. ओके, मुगल मराठा फाइट, you can understand, and the dream of Aurangzeb remained unfulfilled to capture whole of Maratha empire. ये उनसे हो नहीं पाया. Still the Mughals could not defeat the Marathas. महारानी ताराबाई kept up the legacy of valor. उन्होंने पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मुगल्स के साथ क्या किया? बैटल की, मुगल्स के साथ स्ट्रगल की. बट Mughals was not able to capture the Swaraj and Maratha kingdom. Okay, next slide we will see. Yes, ये सब करते करते क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब died. Now you can understand Aurangzeb fought with Shivaji Maharaj, with Shivaji Maharaj's son Sambhaji Maharaj, then Rajaram Maharaj, ताराबाई और ये सब के बीच में. लेकिन फिर भी Mughals cannot अटेन द स्वराज. मुगल्स को ये मिला ही नहीं, ये फाइट में जीते ही नहीं मुगल्स. एंड औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर. अहमदनगर नाम की जगह पे जो औरंगजेब है वो वहां पर गुजर गए. ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे. यस, अब मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आई विल एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट. कितने साल तक थी ये लड़ाई? लास्टेड फॉर 27 years. किसके बीच में थी ये लड़ाई? वॉर बिटवीन मुगल्स एंड द मराठा सरदार्स. ओके, मुगल एम्परर क्या चाहते थे? ग्रीड, उनकी लालच थी तो एक्सपांड हिज एम्पायर. बट मराठास क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंस, है ना. मराठास का तो यही एक ही उनका मकसद था, उनको कोई एम्पायर को एक्सपांड नहीं करना था. बट मराठास वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन पावर्स. वो चाहते थे कि ये जगह में हम रहते हैं तो हम रूल करेंगे और हम हमारी प्रजा की देखभाल करेंगे. दे डिड नॉट वांटेड एनी फॉरेन पावर्स टू इंटरफेयर इन देम. तो हम फिर से रिवाइज करते हैं. lasted for 27 years. Between whom was this fight? Between the Marathas and the Mughals. And Mughals, what did Mughals wanted? Mughals wanted to extend his empire. And what did Marathas wanted? Marathas wanted independence. Marathas का सिर्फ एक ही ये था conclusion कि उनको क्या चाहिए, एक ही point of view था कि they wanted independence. But what does Mughal wanted from this battle? To extend their empire. उनकी ये जो empire था, उनका जो कब्जा था वो बढ़ाना था, यही चाहते थे मुगल. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारी स्लाइड में? 18th century को क्या कहा गया है?
century of the Marathas. Why it is said like this? Because Marathas emerged victorious in the battle. जो battle हुई 25 साल तक, उसमें कौन जीता? Victorious मराठा हुए. After the death of Aurangzeb, they led many others political arena. They controlled the throne of Delhi, ran the affairs almost all parts of India, and protected it. Therefore, 18th century is known as the century of the Marathas, because they did many other works which was impossible even for Emperor Aurangzeb. Okay, next slide we will see. Yes, ये आप लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट लेक्चर में कि टीचर ये किसका बेटा है, वो किसकी वाइफ है. तो आप लोग देख लो, अभी आपके स्क्रीन पे है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. शाहजी मालोजी राजे के बेटे हैं शाहजी राजे, और शाहजी राजे के 3 सन हैं. लुक एट द स्लाइड, लुक ऑन द योर मोबाइल स्क्रीन. कौन 3 बेटे हैं शाहजी राजे के? संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और विंकोजी. ओके, तो पहले ऐसे करते थे, अर्लियर दे यूज्ड टू डू, कि अपने बेटे को अपने भाई का ही नाम देते थे. छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही किया है. अपने बेटे का नाम जो था उन्होंने अपने भाई के नाम से रखा है. तो 2 बेटे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को, एक छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरे छत्रपति राजा राम महाराज. तो आपको पता है, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, येसुबाई, और छत्रपति राजाराम महाराज की वाइफ महारानी ताराबाई. तो छत्रपति संभाजी महाराज को एक बेटे शाहू महाराज, ओके, और छत्रपति राजा महाराज को 2 बेटे शिवाजी और संभाजी. तो पहले ऐसे ही करते थे अर्लियर, जो भाई थे भाई के नाम से ही क्या करते थे, अपने बेटे को नाम देते थे. ओके, तो आप लोग ये क्लियरली यू कैन सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इवन इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव दिस फैमिली ट्री ऑफ भोसले. ओके, उनके सरनेम क्या था, हमारे जो छत्रपति शिवाजी और संभाजी, इनके व्हाट वाज देयर सरनेम? भोसले. तो ये है उनका फैमिली ट्री, जिसमें हमको साफ दिख रहा है कि जो कभी कभी दादा का नाम भी रखे. देखो, राजाराम महाराज ने अपने बेटे का नाम अपने पिताजी के नाम पे रखे. राजाराम महाराज के बेटे का नाम भी शिवाजी था, और अब राजाराम महाराज ने अपने दूसरे बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे रखे, वो है छत्रपति संभाजी. ओके, तो ये है हमारी फैमिली ट्री. तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा था तो आप लोग यू कैन गो थ्रू दिस फैमिली ट्री. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सिर्फ नाम जो है वो रिपीटेड है. ओके, सो